Okay, so in the last class, uh, we did PNP transistor characterization, and then we studied studied some of the terms like gain, bandwidth, um, then minus 3 dB frequency, what is higher cutoff, what is lower cutoff frequency, what is unity gain bandwidth, and then we did the transient simulations to find out the gain, and then we try to validate the gain through the AC analysis, and then same by transient analysis. And then we did common collector biasing, and we try to uh, understand the uh, configuration, like what is the general gain in common collector. So can anybody of you can tell me what was the gain in case of common collector? It is a characteristic property or intrinsic property of the So common collector circuit. Yeah, one. And uh, was it a positive one or negative one? I mean to say, there was any phase inversion or not when we did the transient analysis? Yeah. sir, actually I was not present and it was recording, so मेरे को डाउट पूछने का टाइम नहीं मिला एंड अभी मुझे खुद बहुत कंफ्यूजन है, बस गेन का ही पढ़ा था मैंने, वी आउट इक्वल टू वी एन. Okay, so V out equals to V in when we are saying, so it is not only magnitude wise, phase wise it is also equal. I mean to say, if you remember last time we did transient analysis in the end of the class, and what we found is like whatever the input we were applying, almost same kind of output was appearing there. And the good thing was that whenever we are getting the peak, the same was for input as well. Let me show you if I can open my interface. I think this was the circuit. This is my input and this was my output. What I am trying to say, can you see when we are getting the peak in the blue curve, this magnitude is may differ very with a very few amount, but what is happening is like whenever we are getting valley, we are getting the valley in the output as well, and when we apply the peak in the input, the same kind of peak was available at the same time at the output side, and that is what the So beauty of the I'm circuit. not able to see the schematic. Wait, let me see. Sir, I'm not able to see the schematic. Wait. अब दिख रहा है? Yes sir. Yes. So this was the circuit for common collector. I'm trying to say कि whatever the input we were applying, the same kind of output, the behavior of the output was obtained. As you can see in this transient analysis, when we analyze a certain input and output at a given time. For example, I am taking this instant. At this instant, we are getting peak at the output, and the same was the behavior at the input side. The applied input was peak at this moment, and the same kind of peak was obtained at the output side. That means no inversion is there. What happens in inverter is when I'm talking about phase inversion, I mean to say, like if it was an inverter, so what should happen is if we apply the input like this is my applied sine input, and if it would have been or there have been any phase inversion, so it should be like this if it was a perfect inverter, right? Whatever the input, it should be inverted at the output side. This red one is output. Okay, but what is happening in this case in common collector is
same kind of behavior is happening. Whenever we are getting applied input peak, we are getting output peak, and when we are applying valley at the input, the same output is also having a valley. So that is I am trying to say. Okay, the when I am saying in case of common collector, I am getting V out is equals to V in. That means magnitude wise, V out over V in is equals to 1, as well as phase is also equal. Phase of V out is also equals to phase of V in. Fine. यस सर। Okay. So सर आपने एक चीज़ पूछी थी कि फेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो चीज़ कैसे पता लगाते हैं? फेज नहीं, मैंने गेन पूछा था, गेन नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर ये इन्वर्टर होता तो वी आउट ओवर वी इन शुड बी -1, ऐसा होना चाहिए था, है ना, बट मैंने +1 लिखा। दिस मीन्स दैट कोई भी फेज का इन्वर्जन नहीं हो रहा है। यस सर, अंडरस्टूड। You will get to know more when you study network analysis. Maybe I don't know if it is in the polytechnic electrical courses or not, but when you study electrical network, where you try to analyze the electrical networks for the different topologies, you will get to know what is phase, what is when you must have studied polar form and rectangular form. So there you'll get to know about the information about magnitude and phase. Okay. ओके सर। So सर वन मोर थिंग yeah. आई वांटेड टू आस्क, जब यूनिटी गेन बैंडविड्थ आपने होमवर्क दिया था, तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिटी गेन बैंडविड्थ वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एम्प्लीफिकेशन होता ही नहीं है। No, unity gain bandwidth is not range of frequency. It is it is a individual frequency, or one point of frequency, which is named to be UGP, where the gain is unity. जब मैंने कल बताया था एंड कि सर, अगर हम ये प्लॉट बनाते हैं बॉडिस प्लॉट, तो अगर ये ऐसा कुछ मेरा बॉडिस प्लॉट आता है, तो अगर ये एक्सिस मेरा डीबी में है, तो अगर ये 0 dB है, लेट सपोज, सो इस 0 dB गेन के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी इस ग्राफ पे, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज यूजीबी। ओके, यूनिटी गेन बैंड। यस सर। एनीथिंग एल्स? एंड सर व्हाट, हम ये कह सकते हैं कि इसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा यूजीबी में? एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ बिकॉज गेन एग्जैक्टली सेम है, वट एवर द इनपुट वॉज अप्लाइड, सेम इनपुट, सेम आउटपुट, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट एंड इज ऑब्टेन एट द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। सो एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ ऐसा कहना इस फ्रीक्वेंसी के बाद सही होगा। बिफोर दैट वी आर हैविंग सम एम्पलीफिकेशन, है ना, बिकॉज द गेन यस is सर। greater than 0 dB. Okay. यस सर। आई थिंक किसी की दो डिवाइस होने के। ओके, इट्स फाइन। सो नेक्स्ट था कि मैंने कहा था फिर कॉमन बेस एंड कॉमन सेलेक्टर के सर्किट को आप खुद से सिमुलेट करिएगा, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट्स को ट्विक करिएगा, स्पेशली रेजिस्टिव कंपोनेंट को, एंड देन कोशिश करिएगा गेन निकालने की, बैंडविड्थ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड यूजीबी। किसी ने करा? एनीवन? यस सर, कलेक्टर बेस हो गया था, कलेक्ट कॉमन कलेक्टर नहीं हुआ था, सॉरी। कॉमन कलेक्टर क्यों नहीं हुआ था? सर वो मैंने स्कीमेटिक तो बना दिया था, बट जब मैं डीसी स्वीप कर रही थी तो उसमें एरर दिखा रहा था एलटी स्पाइस, जबकि मैंने सारे कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ भी दे दी थी फिर भी। दिखाइए क्या एरर दिखा रहा था, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? सर अभी तो एक्चुअली मैं टैब पे क्लास कर रही हूँ, ओके, बट कोई नहीं, आफ्टर फिर ग्रुप क्लास पे, ओके मैं। ग्रुप पे भेज दीजिएगा। तो यस। कुछ कॉमन बेस में आया था, गेन, बैंडविड्थ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ ऑप्ट इन करा था, पैरामीटर्स को नोट डाउन करा था। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एंड -3 dB जो भी आपने गेन वगैरह बताया था, उस पर एक कर्सर आके प्लॉट करके देखा था। तो उसे नोट भी तो करना था।
सर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो मैं भेज दूंगी क्लास के बाद। Next time, no, that is not a very good habit. When you are doing something in the lab or somewhere in the simulation, you must be having proper documentation. When you obtain some results, you must be having some documentation in the backside. Like you must be having a Word file or PDF having all those results, whatever you are having, either in the tabular form or something like. ओके सर। Okay, so next was to simulate सर NP. कॉमन Yeah. सर सर कॉमन कलेक्टर की मैंने स्कीमेटिक किया था और मेरा ग्राफ भी आया है। हाँ. मैंने कुछ रीडिंग्स नोट भी करी है, अभी मुझे पता नहीं है ये सही है या गलत है। Whatever it is correct or not, just send in the group. I'll verify and then tell you. Along with the results, try ओके to send me the schematic as well in a single PDF. ओके ओके सर। Okay. Next was to characterize the NPN and PNP transistor. Like हमने दो कर्व दिखा प्लॉट करा था NPN और PNP के लिए. One was ICVBE VCE and second was IBVBE. किसी ने करा? यस सर। तो रिजल्ट आप शेयर क्यों नहीं करते ग्रुप पे यस आप लोग? पिछली इंटर्नशिप पे भी तो ये चीज़ें बता दी गई थी कि वेन एवर यू डिड समथिंग एज द पार्ट ऑफ द होमवर्क यू मस्ट शेयर इन द ग्रुप. सर। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा कि उसे ग्रुप पे लिख लीजिए. ओके. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज बेस विथ मॉड्यूलेशन. एनीवन? When I was talking about early effect, I told you to find something about base with modulation. किसी ने करा? किसी ने जानने की कोशिश करी? सो कैन आई टेल? हाँ बिल्कुल. सर बेस विद मॉड्यूलेशन में कलेक्टर बेस का जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं जो ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो उस वजह से डिप्लेशन लेयर पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन्स उसके अंदर इमोबाइल आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो भी बढ़ जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि डिप्लीशन वो रीजन. डिप्लेशन डिप्लीशन रीजन से क्या मतलब है आपका? से डिप्लीशन रीजन से मतलब है कि अगर मैं कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करूं पीएनपी में, हम्म. तो वो होल्स कलेक्टर के अंदर जो है दे विल गेट अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वहाँ पर एक डिस्टेंस कह सकते हैं या फिर एक एरिया कह सकते हैं जिस वजह से जो आयंस हैं या फिर जो कैरियर्स हैं वो उनको जिस जगह जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक गैप बन जाता है। सो इन कंसिक्वेंस क्या होता है फिर? देन से वहाँ पर इमोबाइल आयंस बन जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, एंड देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे जंक्शन के जो मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देन कलेक्टर में वो कैरियर्स जा कर के कलेक्टर करंट बना लेते हैं। ओके. एनीवन एल्स? तो खुशी गुप्ता का आंसर सही है. बस ये बेस विद मॉड्यूलेशन के साथ में ब्रैकेट में जो आपने अर्ली इफेक्ट लिखा है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. एक कॉज है और एक इफेक्ट है ना? तो इसे एक साथ में समझिएगा. बट आंसर आपका सही है, इसे भी पढ़ सकते हैं आप. अभी जो आंसर कर रहे थे वो भी इसे देख लीजिए, इन्होंने सही लिखा है. जो भी आपने कहा उसका एक कंक्लूजन ये कंसाइज वे में लिखा है यहाँ पर. what happen is like when reverse bias voltage is increased after a certain range, what happen is the collector current doesn't remain constant even when VC is applied more and more and it starts increasing. Effectively the width effective width of the base decreases. Okay, so next we are going to do, yeah, emitter amplifier. Fine.
कॉमन एमिटर, ये वर्ड अभी आप छोड़ भी सकते हैं। आरसी कपल्ड का मतलब सिर्फ सिंपल है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने, यही इसका मतलब है। कुछ कपलिंग कैपेसिटर्स और रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर रजिस्टर यूज़ किया गया है, यहाँ यूज़ किया गया है एक कैपेसिटर। तो दीज इसकी वजह से यहाँ पे एक नाम दिया था आरसी कपल। जैसे सिंपल अभी हम जो समझ रहे थे कॉमन एमिटर, तो उसकी बात करते हैं। तो कॉमन एमिटर में हमने जाना था कि कॉमन एमिटर में इनपुट कहाँ दिया जाता है, बेस पे, और आउटपुट कहाँ दिया जाता है, कलेक्टर पे। सो दिस इज़ द मोस्ट यूज एम्पलीफायर टोपोलॉजी इन केस ऑफ बीजेटी, कॉमन एमिटर। वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉमन एमिटर, मैंने कहा जब कॉमन एमिटर कह रहे हैं तो एमिटर पे कोई भी एसी सिग्नल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं एमिटर पे कोई भी स्मॉल सिग्नल नहीं है। स्मॉल सिग्नल कहाँ है, बेस पे और कलेक्टर पे। फाइन, these are the two resistive network to give the biasing to base VB। ये कल बताया था मैंने, इसको मॉडल कर सकते हैं इस तरीके से, एक VTH आएगा और एक RTH आएगा जब इसे मॉडल करेंगे तो इस VB पर। और इस RTH की वैल्यू क्या होगी, R1 पैरेलल R2। ठीक है, इसके क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, IE RE1। और ये करंट क्या होगा, IC। सो इसके इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, IC RC1। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ जस्ट सिंपल नेटवर्क एनालिसिस करना है हमें, और फिर हमें बाइसिंग करनी है इसकी। तो हमने दो बाइसिंग कर ली थी, एक कॉमन बेस की और एक कॉमन कलेक्टर की। अब हम इसकी बाइसिंग करेंगे। अगेन हम अपनी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में रखेंगे। तो बेस कलेक्टर जंक्शन जो होगा वो होगा फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जो होगा वो होगा रिवर्स बायस विद रिस्पेक्ट टू बेस। तो सेम चीज़ हमें अपने डिज़ाइन में करनी है। तो मैं चाहूँगा कि इसके डिज़ाइन के लिए आप अपने पास एक नोटबुक ओपन कर लें और साथ में साथ कुछ फार्मूलाज नोट करें, मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, या क्वेश्चन तो नहीं, बस सिंपल डिज़ाइन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, NPN टाइप का। ठीक है, तो मैं कुछ स्पेक्स दे रहा हूँ, स्पेक्स नोट कर लीजिए आप लोग अपने पास। लेट सपोज मैं गेन लेता हूँ, मेरे पास लिखा है एक स्पेक्स, मैं उसे लिख देता हूँ। या गेन इज 35 वोल्ट। Power dissipation is it should be less than 10.5 milliwatt, and then the bandwidth is expected to be in the range of 20 hertz to 20 kilohertz। ये रेंज आपने कहीं सुना होगा, कोई बता सकते हैं ये कौन सा रेंज होता है, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स? एनीवन? बेसिक साइंस में पढ़ा होगा आपने। Human audible ranges. यस, ह्यूमन ऑडिबल रेंज। तो हम बस वैसे ही ओपैम बना रहे हैं जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज में रहे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ के लिए। और हमारे पास ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिस्टर्स के। इसका बीटा मैंने लिया है 300, और कुछ अजम्पशंस लेने हैं आपको। तो ये तो स्पेक्स है, ये स्पेक्स आप लिख लीजिए। मैं बीजेटी की भी टाइप लिख देता हूँ, कौन सी बीजेटी यूज़ करना है हमें। ये जो मैंने स्पेक्स लिखी है बीजेटी है 2N3904, यानी जो NXP का है। मैं NXP के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड है, LT स्पाइस से मिल जाएगा। इसकी सैचुरेशन करेंट आई थिंक 10⁻⁻14 थी, कल हमने देखा भी था। ठीक है, ये डिज़ाइन स्पेक्स है। नेक्स्ट थिंग कुछ अजम्पशन है, मैं वो अजम्पशंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस सर्किट पे आता हूँ मैं अजम्पशंस के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी आउट पे जो मेरा आउटपुट आए, इट शुड बी, जो DC आउटपुट हमारा आएगा वी आउट पे, वी आउट DC, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी VCC/2। ठीक है, VCC/2। तो ये भी एक टारगेट होगा हमारा, वी आउट DC इज इक्वल्स टू VCC/2। तो इस केस में VCC कितना है हमारा, +12 वोल्ट।
तो ये हो जाएगा 12/2 विच इज़ 6 वोल्ट। ठीक है, एक हमारी ये अजम्पशन हो गया। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप लेते हैं हम, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप को हम लेते हैं पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पर VCC/2 चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ मुझे कितना चाहिए, VCC/2, और यहाँ से यहाँ का ड्रॉप मुझे चाहिए VCC/2। ठीक, तो मैं VCE जो ये ड्रॉप होगा मैं उसे एज्यूम कर लूँगा 0.5 VCC। ठीक है, और इसे कर लूँगा 0.1 VCC। ओके, तो आप 0.4 VCC हो गया, तो इसे मैं VCC/2.5 कर देता हूँ, या सिंपल मैं 0.4 लिख देता हूँ। पॉइंट 4 VCC, तो ये 0.6 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। एक VDD रेल से ग्राउंड तक मैंने कहा कि जो वी आउट पर मुझे DC चाहिए, वो चाहिए मुझे 0.6 VCC। तो 0.4 का ड्रॉप मैंने ऊपर से लिया, और 0.6 का ड्रॉप मैंने नीचे से लिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम सारे वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जो हमारा टारगेट था उसको मैंने यहाँ से पूरा करना चाहा। तो ये जो RE का ड्रॉप होगा, इसे मैंने लिया 0.1 VCC, और इस ड्रॉप को लिया मैंने 0.5 VCC, and you can validate कि 0.5 plus 0.1 will give me 0.6 VCC, and the V out will be expected to be 0.6 VCC। तो यहाँ पर DC वोल्टेज अपियर होगा। यू कैन चेंज बाई योर सेल्फ। समटाइम हो सकता है कि मैं बिल्कुल हाफ, जैसे मैंने पहले VCC/2 कहा था, तो बिल्कुल हाफ, तो आप उस टाइम क्या करते हैं कि यहाँ पे 0.5 VCC लिखते हैं, और 0.5 के लिए फिर 0.4 इसे कर लेते हैं आप, और इसे 0.1 रहने देते हैं। तो उस तरीके से आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये लेके चल रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग 0.6 टाइम्स VCC एट द आउटपुट साइड। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। सिंपल 0.6 VCC। अब तो मैंने क्या कहा, VRE का ड्रॉप मैं लेना चाह रहा हूँ 0.1 VCC, ताकि मेरा एमिटर साइड पे बहुत कम वोल्टेज या जो DC सप्लाई है जो मैंने सप्लाई दी है उसका, इसमें जो डिसिपेशन है वो कम से कम हो। अगर इस कम पैसिव कंपोनेंट में कम से कम डिसिपेशन होगा, तो पावर लॉस भी हमारी कम होगी। जितना ज़्यादा हम इसे सप्लाई देंगे उतना ज़्यादा ड्रॉप आएगा, एंड देन पावर डिसिपेशन विल बी मोर इन दिस पर्टिकुलर, एंड दैट विल बी वेस्टेड एक्चुअली। फिर नेक्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं VCE 0.5 VCC, सैचुरेशन से ऊपर है। 0.5 VCC कितना होगा यहाँ पे, 0.5 टाइम्स 12 विच इज़ 6 वोल्ट, है ना। सो ये एनफ है सैचुरेशन में रखने के लिए, आई मीन सॉरी, एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में रखने के लिए। और आई विल बी एज्यूमिंग, क्योंकि बीटा यहाँ पर हमने काफ़ी हाई लिया है ना, इस ट्रांजिस्टर की बीटा काफ़ी हाई होती है, तो बेस करंट बहुत कम होगा, माइक्रो एम्स में होगा। और जनरली हमने कहा था कि IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, और IB जो है हमारा काफ़ी छोटा है, तो वी कैन एज्यूम इन दिस केस फॉर आवर डिज़ाइन के IE शुड बी इक्वल्स टू IC। ठीक है, एक अजम्पशन ये है। तो एक ये, लेट मी हाईलाइट द अजम्पशंस, दिस वन, दिस, दिस एंड दिस, 4 अजम्पशंस जो मैंने अभी लिखा है आपको। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर्स का मैंने पहले भी बताया था। ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, इन दोनों का रेंज जनरली जो मैंने पहले डिज़ाइन करा था दोनों में 1 माइक्रो लिया था, तो अभी हम 1 माइक्रो ले लेंगे अभी भी। तो लेट मी अज्यूम C1 टू बी 1 माइक्रो फैरेड। जनरली ये 1 से 10 के बीच में होता है, 1 से 10 या कुछ इसी रेंज में, उसी के ऑर्डर में होता है, माइक्रो फैरेड के ऑर्डर में। तो मैं इसे सब लिख देता हूँ कि कभी आप जिसको ट्विक करना चाहें तो यू कैन ट्विक अप टू 1 से 10 माइक्रो फैरेड के रेंज में आप इसे ट्विक कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बचा, हमने इसके बारे में समझ लिया, इनके ड्रॉप को देख लिया। इस ड्रॉप से मैं आर की वैल्यू देख लूँगा, इसकी, और इन आर की वैल्यूज़ मैं यहाँ से डिसाइड कर लूँगा इसकी बाइसिंग से, ये हमने पहले भी देखा था। अब इसकी बात बचती है सी लोड की और सी ई की। तो लोड और सी ई हम खुद से कैलकुलेट करेंगे अपनी कैलकुलेशन के थ्रू। इसे सी सी भी बोल सकते हैं हम, कलेक्टर साइड पे है तो। इसे लोड बोलना बल्कि सही नहीं होगा, सी सी ही बोलता हूँ मैं, कलेक्टर साइड पे है तो सी सी, और ये सी ई है मेरा। तो अब इसके बाद ये मैंने कुछ एस्पेक्ट्स लिख दिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक में लिख लें। फिर मैं स्टेप्स बताऊंगा डिज़ाइन का कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे डिज़ाइन। ये लिख लिया आपने? ओके, तो अब मैं स्टेप्स बताता हूँ। ये स्टेप्स ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं बहुत ही रफ मैनर में स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप फोकस करेंगे पावर डिसिपेशन पे। सबसे पहले पावर डिसिपेशन निकालेंगे। पावर डिसिपेशन तो गिवन है, पावर डिसिपेशन से हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, करंट हमारा कितना होना चाहिए। तो पावर डिसिपेशन, और ठीक है, मैं फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पर पावर डिसिपेशन का। पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू, अगर ये मेरा सर्किट है तो मैं, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज है, जो एक सप्लाई वोल्टेज गिवन होगा, और यहीं से कुछ कलेक्टर करंट जो यहाँ फ्लो कर रहा है। तो ये मेन हमारा पावर डिसिपेशन होगा कि वी सी सी टाइम्स आई सी सी इन द केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, ये पावर डिसिपेशन हो गया। अब दूसरी चीज़ है गेन की नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं निकालूंगा आई सी सी की कंस्ट्रेंट। ठीक है, और उससे फिर मैं आई एज्यूम सम आई सी सी, एज्यूम विद इन रेंज, उस रेंज में जो कंस्ट्रेंट आएगा उसमें मैं एक आईसी को एज्यूम करेंगे। देन गेन, गेन का फार्मूला क्या होता है इसके लिए, गेन का फार्मूला होता है जी एम टाइम्स आर सी। ठीक है, अब इस जी एम टाइम आर सी से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकालूंगा। जी एम का फार्मूला मुझे मालूम है ना, अगर आपको याद हो तो जी एम था आई सी ओवर वी टी, था ये। तो आईसी हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप पे निकाल लिया, आईसी हमने निकाल लिया एज्यूम करके। वीटी मुझे मालूम है, वीटी जनरली होता है 26 मिली वोल्ट, 26 मिली वोल्ट। और तो हमें जीएम मालूम चल गया इस सर्किट के लिए। आरसी मुझे मालूम होगा यहाँ से, गेन मुझे स्पेक्स में गिवन होगा, जैसे यहाँ पर स्पेक्स में गेन मुझे गिवन है 35 वोल्ट बाई वोल्ट। तो मैं उस गेन का इस्तेमाल करके मैं आरसी की वैल्यू निकाल लूँगा इस इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ से मुझे मिलेगा आरसी। तो आरसी इज सॉर्टेड नाउ। अब मैं आऊँगा थर्ड स्टेप पे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के लिए मैं जाऊँगा अपने अजम्पशन पे। सो मेरा अजम्पशन क्या था, एक इस पे जाऊँगा मैं एमीटर रजिस्टर पे। तो इसके लिए मैंने अजम्पशन करा था कि इट शुड बी इक्वल्स टू 0.1 VCC। तो ये ड्रॉप कितना हो गया, अगर ये VE है और ये RE है, इसको RE बोलिए, वन मतलब RE, इसे VCE, ये RE है और ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पर एमीटर करंट जा रहा है। ठीक है, डीसी, सीई में कोई भी डीसी करंट नहीं जाएगा इस कैपेसिटर में। तो सारा जो डीसी है इससे पास करेगा इस रजिस्टर से, तो मैं इसके क्रॉस जो भी यहाँ से एमीटर करंट आएगा, आई एम एज्यूमिंग कि इट विल completely flow in this particular resistor IE, which is called as IE। तो मैं यहाँ से इसका ड्रॉप मुझे मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है विच इज़ 0.1 टाइम्स VCC। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि VE इज इक्वल्स टू पॉइंट, ये 0.1 टाइम्स VCC। और इस V को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, तो बताएगा ओम्स लॉ क्या होता है फास्ट, क्या?
ओम्स लॉ कोई बताएगा? एक सिंपल रेजिस्टर है, वी नो ओम्स लॉ सेज that it talk about the drop across a resistor or any uh, reactance. So it is I times R. Simple. So here the I is emitter current and RE is resistor. तो यहाँ से मुझे VCC की वैल्यू मालूम है, वी नो द VCC, वी नो द IE, हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है कि IE इज इक्वल्स टू IC, यहाँ मैंने करा था IE इज इक्वल्स टू IC, है ना, इसमें मैंने कर रखा है कि IE इज इक्वल्स टू IC। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से IE को IC से रिप्लेस करूँगा, मुझे VCC मालूम है, तो मैं यहाँ से RE की वैल्यू निकाल लूँगा। तो थर्ड स्टेप में मैंने क्या करा, I know the relation VE is equals to 0.1 time VCC, which is equals to IE times RE, और हमने ये चीज़ मान रखी है पहले ही कि IE is equals to IC। That means यहाँ से मुझे एक रिलेशन आ जाएगा RE का, RE is equals to 0.1 times VCC over IC। तो यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थर्ड स्टेप में। ठीक है, मैं स्टेप 4 पे आता हूँ। स्टेप 4 में अब मैं डिसाइड करूँगा R2। ठीक है, R2 हम यहाँ से RC भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है RC कैसे डिसाइड करेंगे? या RC हमने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, आई थिंक मैंने बता दिया RC। लेट मी गो टू स्टेप 3। हाँ, RC तो निकाल लिया हमने, तो दो चीज़ हमारे पास सॉर्ट हो गई, RE एंड RC। अब बचता है हमारे पास R1 और R2। कैपेसिटर की वैल्यू मैंने पहले बता दी, मैं 1 रखूँगा। तो अब ये दो रजिस्टर बचते हैं और ये दो कैपेसिटर बचते हैं, तो पहले मैं इन सारे रजिस्टर्स की बात कर लेता हूँ। RE बता दिया, RC बता दिया कैसे निकालेंगे। अब R2 R1 पे फोकस करना है। सबसे पहले मैं R2 की तरफ जाता हूँ, मुझे R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 की वैल्यू के लिए आपको एक रिलेशन याद रखना होगा। R2 की वैल्यू की रिलेशन होती है कि R2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स बीटा RE। After certain designs, intuitions, and observations, it has been developed कि R2 should be less than or equals to 0.1 times beta RE। बीटा आपको स्पेक्स में ऑलरेडी गिवन है, RE आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ से R2 निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी एक R2 एज्यूम कर लेंगे आप, यहाँ से R2 विल बी assume R2 in this range। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में अब मैं R1 को डिसाइड करना है मुझे, है ना, हमने सारी रजिस्टर की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे R1 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू के लिए मुझे ये मालूम है, मैं इसके अक्रॉस फिर ओम्स लॉ लगाऊंगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो मुझे ये मालूम है कि ये ड्रॉप कितना होना चाहिए। ये ड्रॉप है VCC माइनस VB ओम्स लॉ के हिसाब से, है ना। VCC माइनस VB इज इक्वल्स टू I, let's suppose I am taking it I R1 into R1, ये इसका ओम्स लॉ का रिलेशन है। तो VCC आई नो, VB मुझे मालूम करना है, VB मुझे नहीं मालूम है, और ये I R1 भी मुझे नहीं मालूम है। तो मुझे अब यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी होगी, VB, और अगर मुझे जब VB मालूम चल जाएगा तो मुझे R1 मालूम करना पड़ेगा, तो I R1। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँगा कि अब मैं अपने उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, पोटेंशियल डिवाइडर का। पोटेंशियल डिवाइडर क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ रेजिस्टिव नेटवर्क है, और लेट्स सपोज दिस इज सम V एंड दिस इज सम VB, ये R1 है, ये R2 है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ है। तो वोल्टेज डिवाइडर कहता है कि VB इज इक्वल्स टू R2 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स VA। This relation holds perfect only when there is no current going in this network।
यहाँ पर ये रिलेशन तभी वैलिड होता है जब यहाँ पर कोई करंट नहीं होता है, इस डायरेक्शन में कोई भी करंट नहीं होता, जीरो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस रिलेशन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब यहाँ से लेट सपोज कोई करंट आ रही है आई, और सेम करंट जा रही है नीचे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, और यहाँ पर जो करंट जाएगा तो वो बहुत छोटा होगा, जो आई बी करंट होगा, विच इज़ इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्प्स। तो बहुत डिफरेंस होगा दोनों में। तो उस वजह से मैं इस रिलेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या एज्यूम करूँगा कि जो भी करंट यहाँ आ रहा है इट इज़ ऑल गोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो मैं इस रिलेशन से मैं क्या प्रूव करूँगा कि वी से जो करंट सप्लाई इस पाथ में चला वो पूरा का पूरा इस R2 में चला गया। तो मतलब R1 के अक्रॉस जो करंट है इट इज़ सेम एज द करंट अक्रॉस द R2। तो इससे क्या होगा कि मैं बोल पाऊँगा कि आई R1 इज इक्वल्स टू आई R2। ठीक है, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, आई R1 इज इक्वल्स टू आई R2। तो आई R1 क्या होगा, R1 के क्रॉस का ड्रॉप। तो R1 के क्रॉस ड्रॉप क्या है, VCC माइनस VB ओवर R1। ये हमारा है VCC माइनस VB ओवर R1। और R2 के क्रॉस ड्रॉप क्या है, आई मीन करंट क्या है इस रिलेशन से, वो है VB माइनस ज़ीरो ओवर R2। सो ये है VB माइनस ज़ीरो ओवर R2। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो व्हाट आई विल गेट, हमें मुझे यहाँ से क्या चाहिए, हमने पिछले रिलेशन में R2 ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मुझे R1 चाहिए इस रिलेशन से, तो मैं इसे अलग कर लूँगा इस R1 को। तो यहाँ से मैं R1 को अलग कर लेता हूँ, R1 इज इक्वल्स टू R2 टाइम VCC माइनस VB। ठीक है, और ओवर में VB। तो मेरे पास अब एक ये रिलेशन आ गया जहाँ से मैं अपने R1 की वैल्यू को डिसाइड करूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टिल देयर इज़ वन अननोन, हमें R2 मालूम है, VCC मालूम है, लेकिन VB तो नहीं मालूम है। इस VB की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो अगेन फिर से मैं ट्रांजिस्टर की इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। ट्रांजिस्टर का इक्वेशन क्या था, करंट का, कलेक्टर करंट का, IC इज इक्वल्स टू IS एक्सपोनेंशियल VBE ओवर VT, यही था। अब मैं इसे और मैनिपुलेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ मैं ऐसा लिखता हूँ पहले से, आई सी ओवर आई एस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वी बी ई ओवर वी टी। अब मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, नेचुरल लॉग, एल एन आई सी ओवर आई एस इज इक्वल्स टू एल एन एक्सपोनेंशियल वी बी ई ओवर वी टी। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन अगर एल एन, या फिर ऐसा समझिए कि लॉग ऑफ ए, ए टू द पावर समथिंग है, तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, फिर बचेगा ये टू लॉग ए, और अगर ये बेस और ये आर्गुमेंट अगर दोनों सेम हो जाए लॉग की, तो वो वैल्यू देता है वन, तो ये हो जाएगा एक्चुअली टू टाइम्स वन विच इज़ टू। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगा, और जब वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगा तो इट विल बी इक्वल्स टू वी बी ई ओवर वी टी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मालूम चल गया कि वी बी ई ओवर वी टी इज इक्वल्स टू एल एन आई सी ओवर आई एस। ठीक है, तो यहाँ से मुझे फिर एक रिलेशन मिल गया कि वी बी ई इज इक्वल्स टू वी टी एल एन आई सी ओवर आई एस। ठीक, मैं यहाँ से फिर से वी बी माइनस वी ई इज इक्वल्स टू वी टी एल एन आई सी ओवर आई एस। अगेन मैं ज़रा इसको बैक सारे पार्ट को लेकर के जहाँ से मैंने कुछ चेंज करा है कैलकुलेशन को, लेट मी चेंज द कलर। अब यहाँ से मुझे वी बी की वैल्यू मालूम चल गई कि वी बी इज इक्वल्स टू वी ई प्लस वी टी
ln IC ओवर IS। ठीक है, तो ये मेरे को इक्वेशन बन गई। ठीक, तो मुझे अब VB मालूम चल गया, VE, VT, ये सारी चीज़ें मालूम चल गई। फाइन, मुझे सिर्फ मालूम क्या करना है, कुछ VT मुझे मालूम है, IC मुझे मालूम है, IS वी नो फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक और द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिस्टर क्योंकि बीटा गिवन है। VE भी मुझे मालूम है। VE कैसे मालूम है मुझे, ये देखिए हमने VE को एज्यूम करा था स्टार्टिंग में, यहाँ लिखा है था मैंने, है ना, VRE। तो जो VRE है वही तो VE है। अपने इस डिज़ाइन में देखिए, जो इसके क्रॉस का ड्रॉप है वही तो ये VE पोटेंशियल है। तो वी आर ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी ई। तो मुझे वी ई भी मालूम है, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, वी बी, और इस वी बी को निकाल कर मैं फिर अपने इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में, तो मुझे आर वन मिल जाएगा। और जो मेरा टारगेट है कि मैं स्टेप 5 में, फिर मेरा क्या टारगेट रह गया, स्टेप 5 में जो हमारा टारगेट रहा, इट इज़ टू फाइंड आर वन। ये हमारा टारगेट रहा स्टेप 5 का। कोई डाउट स्टेप 5 में, एनीवन? कोई डाउट कैलकुलेशन में? अगर if no response is there, I'll assume that everybody is going fine. Okay, so अब मैं फिर से आता हूँ अपने schematic पे. Now R1 is obtained, R2, RE, RC, these things are well calculated. Now we have to look for the CC and CE. यहाँ पर assumptions फिर से involve होगा, मतलब it is not assumptions, it is very calculated assumptions. अब मैं यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ स्टेप 6 का, f minus 3 dB is equals to 1 upon 2 pi RC। ठीक है, ये फार्मूला, इट इज़ वेरी यूजफुल फार्मूला, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसे ज़रूर याद रखिएगा आप, ये फार्मूला होता है। अब R और C की वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे तो वी विल बी एबल टू चेक कि हम कौन से फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्योंकि दोनों ही -3 dB फ्रिक्वेंसी होता है। मैंने कल बताया था इस वाले प्लॉट से कि ऐसा कुछ अगर मेरे पास है, अगर ये -3 dB है तो दोनों साइड में एक ये एफ लोअर और ये एफ हायर, ये होता है। तो ये कौन सा है, तो अगर अब मैं स्कीमेटिक पे ये बताता हूँ, ये like by doing some designs, by tweaking and doing some iterations to adjust the bandwidths, ये ऐसा मतलब एक्सपीरियंस से मालूम चलता है। और मैं बताता हूँ आपको पहले ही, आप भी कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने डिज़ाइन से, कि जब हम हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो वो जनरली इस वाले CC से कंट्रोल होता है, इस वाले कैपेसिटर से, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो अगर मैं इसकी CC यूज़ करूँगा तो आर मुझे ये वाली यूज़ करना होगा उस फार्मूले में, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए मैं इसकी तरफ देखूँगा, इन दोनों की तरफ। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, बोलेस प्लॉट, ये सब का रिलेशन कहाँ से होता है, पोल से। पोल क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है, ये आप आई थिंक जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि पोल से ड्रॉप आता है, या और ज़ीरो से क्या आता है कि गेन आता है, स्लोप बढ़ता है। तो स्लोप का बढ़ना घटना पोल और ज़ीरो पर डिपेंड करता है। तो कितने पोल कितने ज़ीरो, ये तो आपको यहाँ पर बता नहीं सकते क्योंकि आपकी थ्योरी का काफ़ी गैप है। तो यू विल गेट टू नो इन हाई क्लासेस कि व्हाट इज़ पोल एंड ज़ीरो एंड एट विच नोड विच पोल इज़ देयर। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस नोड पे एक आपको जो पोल मिलेगा, इट विल बी यूज टू गवर्न दी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो दैट इज़ यूजिंग दीज टू आर एन सी वैल्यूज़। और लोअर के लिए आप इसे देखेंगे, तो मैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये लोअर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इसको ट्विक करने से लोअर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। बट ऐसा देखा गया कि जनरली ये एफ एच की तरफ करेगा और ये एफ एल की तरफ करेगा, बट ये भी एफ एच को इफ़ेक्ट करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा।
क्योंकि ये नोड पे इफेक्ट आता है इस नोड पे। तो आर ई तो मुझे पहले ही मालूम है, तो मुझे सी सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं यहाँ से सी सी की वैल्यू मालूम कर दूँगा। सी सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ हायर और आर सी सी, जो आर सी मैंने यूज़ किया है कैपेसिटर विच इज़ एट द कलेक्टर साइड, यही वो यहाँ से मिलेगा स्टेप 6 से। ठीक है, फाइन। बस मैंने आर सी इधर ले गया मैं, और फिर एफ को इधर लेके आ गया मैं, और एफ माइनस थ्री डी भी तो हमें एफ एच देता है, तो मैंने उसे एफ एच लिख दिया। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, अब सेवन्थ स्टेप आता है। सेवन्थ स्टेप में क्या होता है कि अब मुझे सी ई को एज्यूम करना है, या फिर नॉट एज्यूम, सी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए दो तरीका होता है, मैं से मेथड 1 एक लिखता हूँ और एक मेथड 2 लिखता हूँ। ठीक है, एक रिलेशन आता है कि एक्स सी ई शुड बी लेस देन आर ई बाई 10। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है कि जब मैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक सी को एज्यूम करूँगा। जनरली मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट सपोज 100। तो सबसे पहले मैं सी क्या करूँगा इस केस में कि एज्यूम सी ई इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोफैरड। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैं देखूँगा कि मेरा जो प्लॉट है, प्लॉट पे क्या मुझे लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिली। तो लेट सपोज मुझे मिल गया 50 किलो हर्ट्स, सॉरी 50 हर्ट्स, मैं लोअर की तरफ बात कर रहा हूँ, मुझे 50 हर्ट्स मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कम करना है, क्योंकि मेरा टारगेटेड था 20 हर्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ कि इजेड पे ट्विक करता हूँ, मैं सी ई को एडजस्ट करता हूँ, मैं सी ई को 200 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जब सी ई को बढ़ाया तो मैंने क्या पाया कि ये हो गया आपको लेट सपोज 100 हर्ट्स। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सी को बढ़ाने सी ई से मुझे और कम जाना है, मतलब 50 हर्ट से 20 की तरफ जाना है, बट ये तो ऊपर की तरफ चला गया। तो जब मैंने ये ऑब्जर्व करा, तो मैं क्या करूँगा, फिर सी को कम करूँगा, 100 से कम करूँगा, बढ़ाऊँगा नहीं। तो कम, लेट सपोज मैंने 50 माइक्रोफैराड कर दिया। जब मैंने कम करा तो ये आके ये 10 हर्ट्स पे आ गया। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल सब कुछ एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने 200 रखा, तो मुझे 100 मिल गया। फिर मैंने 50 रखा तो मुझे 10 की तरफ चली गया। तो मतलब कि सी को 100 रखने के बाद मैं अगर कम करता जाऊँ तो मुझे 20 की तरफ मैं जा सकता हूँ। तो मैं अब, लेकिन जब मैं 50 की तरफ गया तो 10, मतलब मैं 20 से भी नीचे चला गया। तो मैं क्या करूँगा, फिर से थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा दूंगा। तो मैं लेट सपोज मैं रख देता हूँ सी दिस टाइम, सी इज इक्वल्स टू 60 माइक्रोफैराड। तो इस केस में मुझे समवेयर अराउंड 20 हर्ट्ज मिलेगी। तो इस तरीके से मैं टारगेट को पूरा कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं प्योर ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने ट्विकिंग करी, सी को बढ़ाया घटाया। अभी मैंने सारी डिज़ाइन कर ली है, सारी वैल्यूज मैंने चुन ली है। अब मैं सी को चूज़ कर रहा हूँ, सी पहले चूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, सब मैंने डिज़ाइन कर ली। अब मैं सिमुलेशन से ट्राई कर रहा हूँ सी को एडजस्ट करने का, सी को फिक्स करने का, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ माई बैंड विथ और माई लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ मेरा ये था, तो मैंने उसे यहाँ से एडजस्ट कर लिया। तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ सर हमने, ये हाँ पूछिए, पूछिए। CE वाले फिर से रिपीट कर दीजिए, आपने जो बोला था। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ट्रायल एंड एरर की तरह है कि मुझे, मेरा कोई टारगेट था कि मेरे को 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए एट लोअर साइड। तो मैंने क्या करा, मैंने सारी डिज़ाइन कर ली है, बट मुझे सी ई नहीं मालूम है। मैं सिमुलेशन पे गया, मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है, बट मुझे अभी सी ई की इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले सी ई की वैल्यूज़ को 100 माइक्रोफेरेड चूज़ कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या पाया कि 100 पे मुझे 50 हर्ट्ज मिल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट मैंने क्या करा कि सी ई को 20 हर्ट्ज कर लिया, सॉरी 200 मेगा फेरेड कर दिया, माइक्रो फेरेड। तो 200 माइक्रो फेरेड करने पर मुझे क्या मिला, वो मिला 100, मतलब और वो बढ़ गया। पहले तो 100 पे वो 50 था, अब 200 करने पर वो 100 हो गया। बट मुझे तो 20 की तरफ जाना था। तो फिर मैंने ऑब्जर्व करा कि नहीं, मुझे तो सी को बढ़ाने पर ये ऐसा बिहेवियर दे रहा है मेरा सर्किट कि वो
लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और बढ़ रहा है, बट मुझे तो घटाना था, तो मैं फिर सी को कम करूँगा 100 से, बढ़ाने के बजाय। तो जब मैं कम करूँगा तो इट विल, लेट सपोज मैंने फिर कुछ 50 रखा, तो 50 रखने पे मैंने क्या पाया कि वो और कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। इट केम आउट टू बी 10 हर्ट्स, बट माई टारगेट वाज ओनली टू गेट 20 हर्ट्स। तो मैं ज़्यादा नीचे चला गया, तो मैं थोड़ा सा फिर ऊपर जाऊँगा अपने सी से। तो लेट सपोज मैं 60 माइक्रोफैरड रखा मैंने, तो वहाँ से मुझे 20 हर्ट्स मिल गया। तो ये बस जस्ट एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसे रिजल्ट को अचीव करने का तरीका है एक। दूसरा फिर आप इसे फॉलो कर सकते हैं कि एक्स सी ई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आर ई बाई 10। आर ई मुझे मालूम है, और एक्स सी ई क्या होता है, एक्स सी ई यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स सी ई is reactance which is equals to 1 upon omega CE should be less than RE by 10। तो यहाँ से जब मैं CE निकालूंगा तो CE should be greater than equal to 10 times omega RE। ठीक है, और ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ये भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया। तो यहाँ से जब मैं सी की तरफ निकालूंगा फाइनल फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तो वो आएगा 10 ओवर 2 पाई एफ आर ई। ये फाइनल कैलकुलेशन एक यहाँ से भी देख सकते हैं। बट दीज थिंग्स आर नॉट वेरी रियली प्रूवन कि हाँ ये काम करेगा हर वक्त हमेशा हर सर्किट ना। ये डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन करते हुए ऐसा ऑब्जर्व करा है, फिर उसे नोट करके इसे लिखा है विद आफ्टर सो मेनी ऑफ इंट्यूशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, फाइन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सारे स्टेप्स में सबसे पहले मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताया, कुछ असम्पशंस बताए, और फिर मैंने सारे डिज़ाइन के स्टेप्स बताए। ये जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है उसका ये पूरा स्टेप्स है। इसमें कुछ पूछना है पेज किसी भी स्टेप्स में तो पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सारे स्टेप्स स्क्रीन पर विजिबल है, इसे देखिए एक बार, गो थ्रू करिए और फिर पूछिए कुछ पूछना है तो। क्लियर है सभी को? यस सर। दो चीज़ें हो सकती है, या बहुत ज़्यादा समझ आ गई या कुछ समझ नहीं आया। रिस्पॉन्स आने का तो यही मतलब है। तो अब डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से। सर क्या रिपीट करना है? सेवेंथ, सेवेंथ स्टेप, अच्छा सी में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। देखिए सी का ऐसा है कि अभी मेरे पास एक स्कीमेटिक है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। मैंने सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली, सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब मुझे सी को डिज़ाइन करना है, सी की वैल्यू चूज़ करनी है। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीका है। एक तरीका जो मैंने यहाँ मेंशन करा, जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेथड वन, ये पूरा मेथड वन है। ठीक है, ये तो इसमें बिल्कुल डेली कॉमन सेंस की तरह इसे समझिए कि मेरे को क्या करना था कि मेरे को 20 हर्ट्स टारगेटेड था। 20 हर्ट्स था ना एस्पेक्ट्स में, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स। अपर तो मैंने एडजस्ट कर लिया है ऑलरेडी सीसी से। अब मैं सी ही डिसाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं 20 हर्ट्स की तरफ देखूंगा, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की तरफ। तो अब मैंने खुद से कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर ली। तो इन केस मैंने 100 माइक्रोफेरेड अज्यूम करा, तो उस केस में मेरा जो वैल्यू आई वो आई 50 हर्ट्स। ठीक है, 50 हर्ट्स आई करस्पॉन्डिंग टू 100 माइक्रोफेरेड। फिर मैंने उसे बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि मुझे
20 हर्ट्ज चाहिए बट मिला मुझे 50 हर्ट्ज से, मैं बढ़ा के देखता हूँ। आपका मैंने तो आप घटा के देख लीजिए पहले। तो मैंने पहले बढ़ाया तो मेरा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और बढ़ गया, इट केम आउट टू बी 100 हर्ट्ज। तो मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि नहीं, बढ़ाने से मेरी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और बढ़ जा रही है, बट मुझे तो घटाना था 50 से और। तो मैं अब 100 से बढ़ा के नहीं, मैं और इसे घटा दूंगा। तो मैंने 100 से 50 हर्ट्ज करा। 50 हर्ट्ज के लिए मेरे को क्या मिला, 10 हर्ट्ज मिला। स्टिल इट इज़ नॉट द थिंग विच वी आर टारगेटिंग। अब हमें 20 हर्ट्ज लाना है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा इसे। तो मैंने 50 से 60 करा और 20 हर्ट्ज अचीव कर लिया। और दूसरा फिर ये स्ट्रेट अवे तरीका है, बट ये बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाता है। जनरली आपको इसकी तरफ पड़ता है, क्योंकि ये 10 का फैक्टर कहाँ से आता है यही बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी तक डिज़ाइनर्स को। ठीक है। क्लियर है, आप खुद से डिज़ाइन कर लेंगे आप लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ओके ओके। तो ये एस्पेक्ट्स है और ये कैलकुलेशन है। तो मुझे एक बार कैलकुलेशन में करके दिखानी चाहिए, तो वो ज़्यादा आपको आसान होगा। बट मुझे लगता है वो ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, अगर मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा दूँ तो। इतना ही रहने दो, आज बच्चे को लोड ज्यादा हो जाएगा फिर। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हो गए, समझने में टाइम लगेगा इसे। इसको रिवाइज कर लेंगे, रिकॉर्डिंग से भी एक बार देख लेंगे तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या। चूंकि हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, पॉलिटेक्निक में इतना डेप्थ से जा नहीं पाते हैं। एक तो बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, दूसरा कि इतना डेरिवेशन पसंद नहीं करते बच्चे। रटो और नंबर अच्छे लाओ, बस यही होता है। जी। तो अब कल भाई मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो कोई इशू नहीं है, कल अवेलेबल नहीं रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग रिवाइज करेंगे 3 दिन का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन का हो गया ना क्लास। जी। काफी है। जैसे कुछ बच्चे न्यू ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चे को और हम लोग कह देंगे कुछ ऐसा टास्क दे दो कि ये लोग अपना कल करते रहेगी, रिवाइज कर लेगी तो आसान रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट भी मिल जाएगा थोड़ा सा। जी। टास्क ऑलरेडी पहले के लोगों ने करा नहीं है तो वही पहले कंप्लीट कर लें। सब केयरलेस, हालांकि सब तो नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं जो भी ज्वाइन किए हैं। पता नहीं कैसे केयरलेस हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। पिछली बार सब अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, इस बार तो अब किस किस का नाम लो, मुझे सब बच्चे अच्छे लग रहे हैं जो 5-6 हैं, सब सब सिंसियर है। पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल हल्के में ले रखा टीचर को लगता है। सोच रहे कि सर डांटेंगे तो है, नहीं तो क्या करे। इसे टास्क दे दो, कहना रिवाइज कर लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना हम लोग के पास, जी। रिवाइज कर लेना। और अपने जो भी कलीग है जो साथ है वो भी रिवाइज कर लेगी, तो फिर हम लोग